welcome सभी को, welcome to my channel Informatica. I hope you guys are doing absolutely good. So basically, as per the thumbnail and title, you are on the correct video. In this video, I am going to discuss on the topic career restart in IT companies. Whether it's possible or not, I will be talking in this part. And yes, if it's possible, then how it is possible? Because two of the questions you might be having. And yes, first of all, I would like to tell you that yes, don't get upset that you are having 1 year, 2 year, 3 year, 4 year gap because of certain random plan that you might be having, like BTech, BCA, BSc, BSc IT, MSc IT. मतलब जब भी आप बैचलर्स या मास्टर्स खत्म करते हो, मे बी मेनी ऑफ यू माइट बी हैविंग सम अदर प्लान, जिसकी वजह से कैरियर गैप आ जाता है. लाइक मेनी ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, मेनी ऑफ यू माइट बी हैविंग एस्पिरेशन टू क्लियर सम हायर studies examination, entrance exam. Many of you might be having some other plan to go abroad, but now the plan has changed and you want to start your career in IT. Many of you might be trying for a job from since last 1-2 years, but you are not getting it. Maybe possible because for everyone the road is not same. Believe that the way is not common for everyone. Someone may get it very easily, someone may have to go through some obstacle. तो थिंग इज लाइक अब गैप हो गई है 3-4 साल 5 साल, तो कम बैक कैसे करें आईटी में, ये सबसे बड़ा सवाल होगा. क्योंकि सी आप एक कंफर्ट जोन मतलब होता है उससे बाहर चले जाते हो कि हाँ पॉसिबल है या नहीं, और पॉसिबल है तो क्या करना पड़ेगा. क्योंकि भाई 5 साल गैप को क्यों कंसिडर करेंगे कंपनी, वाई दे विल नॉट टेक फ्रेशर्स एंड ट्राई टू ट्रेन देम, वाई दे विल टेक यू, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना. सो आई विल बी टॉकिंग ऑन दैट पार्ट. बट ये सब जानने के पहले यार पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, तब तो सुनोगे पूरे एंड तक. यस, और अगर आप इस रीजन से वीडियो पे आए हो, लाइक इफ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब 1 ईयर 2 ईयर से 3 साल 4 साल का कैरियर गैप है, 5 साल का, एंड कैसे प्लान करना है, तो यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 560 प्लस वीडियो रिलेटेड टू IT. Not only it's limited to college, IT or switching experience, technology, about getting a job. It's end-to-end thing from living in metro city to making videos regarding career start, career technology, switching, on-site, everything. So check out and subscribe मार देना. So just like you all guys, I'm an also IT guy and yes, थोड़ा इंटरेस्ट है वीडियो बना के to share some genuine experiences, because I believe that I should create a platform for you all guys where you all can share genuine experiences. Whatever you feel that is not up to the mark, you are open to write in the comment box. Community should know that what exactly is the correct thing. Okay, feel free to write anything in the comment box. If you need any personal assistant like resume बनाना, job assistant के लिए कहाँ से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, प्रोफाइल को कैसे रीच देना, 5 साल बाद कम बैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना, वो तो मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा. बट आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू हैव सम पर्सनल थिंग दैट यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, टॉक with me so that you can get a better idea that Bangalore region में कैसे अप्लाई करें, NCR region में कैसे अप्लाई करें, and where we can get a better option, how to set up the LinkedIn profile, how to set up the Naukri profile, what are the things that you should follow, and how you should build up your Naukri profile along with the resume so that you start getting calls and you can get converted into a FTE of any of the company that you are training for. So वीडियो को शुरू करते हैं. इज इट पॉसिबल? तो पहला आंसर मैं ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ. येस, इट इज़ पॉसिबल टू कम बैक इन IT एनी टाइम, बट येस देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन. Like I have seen people having 6-7 years of career gap into an IT doing great right now. So if you are having 1-2 years, there is not an issue. ठीक है, बस थिंग है कि थोड़ा मेहनत लगेगा. देख एज अ फ्रेशर क्या होता है ना, फ्रेशर लोगों को कॉलेज में आ जाती है, कैंपस से बुला लेती है, ऑफ कैंपस ड्राइव हो जाते हैं, तो जल्दी सबकी प्लेसमेंट हो जाती है. थोड़ा सा हो सकता है कि उतना स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा. ओके, उतना स्मूथ नहीं होगा, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनी जिनको चाहिए भाई, जिनके मतलब कि कैरियर गैप जो इमीडिएट ज्वाइनर है, जो किसी स्किल में ट्रेंड है, डायरेक्ट भाई अकोमोडेट करो. है लाखों कंपनीज पड़ी हुई है. ओके, देयर आर around 65,000 companies in Bangalore, including startups, MNC, small size, mid size. Just imagine the size, and out of that there might be some companies having the number of count of employee more than 50,000 in Bangalore itself. Okay, so वो सब बात को हटाओ, बट कैसे एंटर करना है सबसे पहले तो ये सोचना है. सी 4 साल 5 साल की करियर गैप हो गया, मान लो आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे थे, अब भूल गए, एंड नाउ यू वांट टू कम बैक कि अब तो भाई IT में ही अब लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है भाई, आई वांट टू गेट बैक इनटू एन IT. कैसे कम बैक करोगे? फ्रेशर जो 1-2 साल की गैप ले चुके हो. One of the most important thing that I would like to tell you. See, IT में तो बहुत डायमेंशन आपको मिल जाएंगे. ठीक है, IT is not only limited to coding. Okay,
IT is not only limited to coding. There are lots of other things that you can do in IT, and that is also paying you a decent package. See, SD roles are the highest paying job. If you are going into the SD1, SD2 kind of stuff, that are the kind of highest paying job in this IT industry. I am not talking about management level. आप कमेंट करके ये मत बताना भाई मैनेजर की. I am talking about the technical stuff. Okay. So SD1, SD2 जो पे होती है वो हाईएस्ट पेड है. SD3 की उससे भी ज़्यादा होगी, बट SD रोल्स आर हाईएस्ट पेड. बट ठीक है, कोडिंग नहीं आती है, 5 साल की गैप हो गई है, उतनी अच्छी कमबैक नहीं कर सकते. देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. नॉन कोडिंग में भी बहुत ऑप्शंस है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर कि क्या क्या ऑप्शन बचा है मार्केट में, और कुछ बेसलाइन चीज जो आपको करके ही बैठना चाहिए. भले आप कोडिंग जॉब में जाओ या नॉन कोडिंग जॉब में जाओ, कंसल्टिंग में जाओ, एनालिस्ट प्रोफाइल में जाओ, बट हाँ कुछ चीजें को तो करके ही बैठना. द थिंग इज लाइक यू शुड बी वेरी मच फेमिलियर विद जावा और एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये कैसे सीखा जा सकता है भाई? हैकरन खोलो, एटलीस्ट इजी लेवल क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, पिलर्स ऑफ जावा, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके ही बैठो भाई. तुम कंसल्टिंग जॉब, बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए भी जाओ, बट एटलीस्ट you should be having idea of Java and Oops. That is my personal view. That will be definitely helping you out in some or the other way. Okay. ये बेसिक चीज है. दूसरी बेसिक चीज है एक स्मॉल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. सर्च ऑन द गूगल, search that learnable project that are available on the internet, try to find from there and try to build hands-on by your own in your own PC or on your cloud. Okay, get hand-to-hand analysis on that. Try to get that what exactly you have done, what are the technology and what are the languages you have used, what are the library function you have used, how that function is helpful. मतलब उसका end-to-end analysis कर लो. अब आप बोलोगे क्यों ये करवा रहे हो bro? The thing is like whenever you are sitting in front of the panel, you don't know who is in your panel. Okay, they can ask any random question based out of your resume. Resume में at least आप उसमें mention करोगे, Java mention करोगे, analysis mention करोगे, उठा के पूछेंगे. And when you are good into this project partner, 5-10 मिनट की conversation ऐसे ही निकल जाती है बहुत easily. So एक अच्छा impact निकलता है. Like when suppose I start talking with you, आप उसी टॉपिक पे बात कर रहे हो जिस पे आप प्रिपेयर हो. वो क्या हो सकता है भाई? आपकी प्रोजेक्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, मैक्सिमम जावा हो सकती है, आपकी प्रोजेक्ट हो सकती है. तो अगर आप उसको रख के उस पर बात कर देते हो, देन इट्स वेरी गुड इंप्रेशन गिविंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल. जस्ट रिमेंबर दिस, इट्स नॉट अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट विल बी गिविंग अ बेटर इंप्रेशन. एक डीबीएमएस पकड़ लो. डीबीएमएस में लाइक एसक्यूएल एंड ऑल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना. आप कोई भी रोल पे जा रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टिंग रोल, भाई एसक्यूएल इज द what I can say, SQL or database language, query language is the kind of a backbone. चाहे भाई IT डेवलपमेंट में जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ, कंसल्टिंग में जाओ, बिजनेस एनालिस्ट रोल में जाओ, या फिर कुछ सी भी रोल पे तुम जा रहे हो IT रोल पे, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू प्ले विद द डेटा. At the end you have to play with the data. Even you are developing some software, either you are performing analysis on some software, giving analytical reviews on some software, or anything that you are doing is based out of some CRUD or database operation. तो भाई तुम किसी भी रोल के लिए जा रहे हो, DBMS SQL को सीख के ही बैठो. अब बहुत लोग बोलेंगे भाई इतना करने से जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नीड सम मोर एक्सपेक्टेशन. यस, टेक्नोलॉजी वाइज एक्सपेक्टेशन है. लाइक सपोज इफ यू आर गोइंग इनटू सम टेक्नोलॉजी, लर्निंग दोस टेक्नोलॉजी, अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ईज यू और ऑप्टिमाइज सम टाइम इन ऑर्डर टू गेट सम डोमेन लेवल एंट्री लेवल जॉब. ओके, सो यू कैन गेट लाइक SAP की कोर्स कर लो, SFDC की कोर्स कर लो, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई कर लो. दैट कैन बी एन एक्स्ट्रा एनहांसमेंट, और दैट कैन बी लाइक एक्स्ट्रा चीज इन योर ब्रेड. ओके, ब्रेड बटर भी खा सकते हो, बट दैट विल बी लाइक एन एक्स्ट्रा चीज दैट विल बी गिविंग यू एन मोर ऑप्शन, दैट विल बी गिविंग यू अ better outlook. What I can say that, but the thing is like baseline चीजों को तो इतना करके चलोगे ना, अप्लाई कैसे करना? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर आप एक टेक पकड़ के चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. रिएक्ट, एंगुलर कुछ भी पकड़ के चल रहे हो, मींस यू विल बी गेटिंग मोर ऑप्शन. 1 साल की एक्सपीरियंस वाली ओपनिंग आ रही है भाई, अप्लाई करो, क्योंकि आपने डोमेन वाइज प्रैक्टिस कर चुके हो. ठीक है, डोमेन वाइज प्रैक्टिस हो चुकी है. यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन, यू विल बी ट्राइंग टू बिल्ड एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ द ऑप्शन दैट विल, आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू विल बी गेटिंग. बट ऑन द अदर हैंड ये बेसलाइन चीजें वाली भी है, फ्रेशर ओपनिंग में ये काम आ जाएगी. सो अगर आप एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी वाइज स्विच जाना चाह रहे हो, ये चीज अगर आप डोमेन प्रैक्टिस में भी जाना चाह रहे हो, किसी भी डोमेन प्रैक्टिस है, BI, टैबल्यू, सेल्सफोर्स,
consulting, analytics, anything it is. Okay, if you are going into domain practice also, be ready with this part. Okay, this part will be definitely helping you out in order to learn the domain, and yes, can help you out in order to grab a better job. ये तो बेसलाइन चीज है, बट हाँ खाली कर लेने से तो नहीं मिलेगा. You have to also apply, you have to also hunt. Every day you should make a pattern to create your Naukri profile, Hirect profile, LinkedIn profile. Try to search on the post section, post everywhere, you have to search fresher hiring. Try to find out the option, try to find out the relevant link, try to apply to the options that are available there. Hirect is also an application that can directly help you in order to get a startup job, but there are many fake jobs present over there. You have to take care regarding all those fake jobs. Okay, अब बहुत सारे फेक जॉब है, आप पैसा दे दोगे भाई फंस जाओगे. आई विल गिव यू अश्योरिटी कि जो पैसा ले रहे हैं वो फेक ही हैं. ओके, वो फेक ही हैं भाई. पैसा आपके पॉकेट से कोई नहीं लेगा जॉब देने के लिए, कॉर्पोरेट जॉब देने के लिए. जो आपसे ले रहा है दैट इज अ फेक. लाइक फेक मतलब ट्रेनिंग वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो आपसे जॉब के नाम पे पैसा ले रहा है वो फेक है. तो कहीं भी 500 रुपया भी मत देना जॉब के लिए. ओके, आफ्टर दैट नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करो भाई, अपडेट करो. और नौकरी प्रोफाइल की वन ऑफ द एल्गोरिदम है, व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, डे एंड नाइट ओपन दैट एप्लीकेशन. Open morning, in evening, morning, in evening. Try to update the application on the regular basis with the skill set that you are growing. Try to update it so that at least recruiter who are searching for the level, means fresher level, low experience level, can get a contact into you. Okay, they will call you. Okay, as per that they will be calling, scheduling a call, scheduling an interview, and can move ahead with the next steps. So देखो, नौकरी, Hirect, LinkedIn, baseline इतना करो और मतलब दम लगा दो. मीन्स सर्चिंग में, एप्लीकेशन अप्लाई करने में. एंड यस, सी मेनी ऑफ जो लोग लकी होंगे, लकी चांस होंगे, 15 दिन 20 दिन में जॉब मिल जाएगी. देयर आर पीपल मे बी दे आर पुटिंग मोर इफेक्ट ऑल्सो, मे गेट इन 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. पेशेंस इज द की. ओके, क्योंकि अब गैप हो गया भाई तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. पेशेंस इज द की. आई नो आई एम स्पीकिंग दिस वेरी इजिली, बट इट विल बी नॉट एज इजी एज आई एम स्पीकिंग. Because I'm taking this on my shoes, I can understand how you can keep patience for 5 months. I can understand those parts. But the thing is that, believe me, if you have waited for 2 years, 3 years, 5 years, wait more for 2, 3, means with doing all this thing, wait more for 3, 4 months. Okay. Keep on applying, keep on applying, keep on applying, keep on applying. Consult me that how and where you can apply. Means if you need any guidance, I have tried to cover each and everything. In fact, then also you need कि भाई पर्सनली कनेक्ट करके बताओ भाई कैसे एक सेटअप करे, कैसे रिज्यूमे बिल्ड करे, कैसे अप्लाई करना स्टार्ट करे. आई एम रेडी टू डू सो. चेक आउट द टॉप लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फ्रॉम देयर बुक अ स्लॉट विद मी, like 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour slots are available. Book a slot with me, connect with me personally, share your screen, build your resume in front of me. Try to apply, try to set up your profile, try to get some input, extra input if you need in a practical way. Rest I try to cover each and everything. You want some domain related thing, domain knowledge related, इसमें कर लूँ, कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, इसके बारे में बता दो, कोडिंग नहीं. ये फ्लेक्सिबल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आस्क द क्वेश्चन. इवन यू कैन पिंग मी ऑन द इंस्टाग्राम in order to check out the thing. After that also, if you need some personal assistant here, check out the top link below. Book a slot, connect with me personally, and yes, get the as best output as you can. चलो वीडियो को यहाँ तक रखते हैं. वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा भाई, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा लाइक करना. वीडियो बेकार लगा होगा भाई, वीडियो में डिसलाइक करना. कमेंट में बताना क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वीडियो से. मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट.